गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट हार्ट इन आवर क्लास. फर्स्टली, हार्ट क्या होता है? हार्ट इज़ द मेन वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. हार्ट के बिना हमारी बॉडी कुछ भी नहीं है. ओके, सो क्या फंक्शन है हार्ट का? मेन फंक्शन हार्ट का क्या है? हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है. ब्लड को पंप कहाँ करता है? दो दो जगह पे करता है. एक तो लंग से ब्लड को लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी में सप्लाई करता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे हमारे लंग्स में पंप करता है. तो ये क्या करता है? पंप करता है ब्लड को. ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी में पंप करता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पंप करता है, ताकि वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड हो जाए वो. सो ये मेन काम क्या है हार्ट का? पंपिंग द ब्लड. नाउ द सम की पॉइंट्स आर हेयर which is very important for heart. Firstly, it's roughly cone-shaped, hollow muscular organ. It's about 10 centimeter long and weight about 325 grams in males and 275 grams in females, and its size about owner fist. ये क्या होता है? रफली कोन शेप्ड होता है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन. हॉलो मस्कुलर इन द सेंस मस्कुलर होता है, और क्या करता है? मसल्स होती है इसमें, और क्या करता है? खाली अंदर से खोखला होता है. लॉन्ग होता है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. 325 ग्राम होता है मेल्स में, और 275 ग्राम्स होता है फीमेल्स में. ये मतलब मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में थोड़ा कम होता है. साइज़ इसका कितना होता है? ओनर फीस. ओनर फीस मतलब अगर एक साल का बच्चा है, उसका उसके हार्ट का साइज़ कितना होगा? उसकी मुट्ठी जितना, मतलब उसके एक फेस्ट जितना, है ना. और एक 20 ईयर्स ओल्ड वुमेन अगर है, तो उसके हार्ट का साइज़ क्या होगा? उसके फेस्ट जितना. तो ये हो गया some key points. Now the position. Heart lies in the thoracic cavity in the mediastinum. कहाँ लाइज करता है? thoracic cavity में. tilt होता है, forward होता है, and to left middle. It's more left than right. ये क्या होता है? जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है हमारे लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे थोड़ा कम होता है, बट लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा झुका हुआ रहता है. ओके, ऑन द डायफ्राम. और ये रेस्ट करता है ऑन द डायफ्राम बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और थर्ड एंड फोर्थ रेप. नाउ go to forward. Now structure of the heart. So there are many structures of the heart: base, apex, chambers, heart walls, and walls. First we will study the base. It is the base of the heart. It is the apex of the heart. The apex rests on the diaphragm, है ना. और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस. ठीक है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे क्या करता है? अपेक्स रेस्ट करता है. और जो बेस होता है वो हमारे सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे रेस्ट करता है. ओके, मतलब उसके वहीं पे होता है. देन अपेक्स और बेस तो हो गया. अब आते हैं हम वॉल्स पे. सो फर्स्टली वी विल स्टडी द वॉल्स ऑफ द हार्ट. द हार्ट वॉल्स कंसिस्ट ऑफ 3 layers: पेरिकार्डियम, which is also called epicardium, myocardium, and the endocardium. Okay. As you can see in the picture, this is the endocardium, this is the myocardium, and this is the pericardium. So this is 3 layers of the heart. Okay. Now first we will study about pericardium. It consists of double sac of serous membrane and single layer of fibrous layer. So the pericardium is also consists of 2 layers. Okay, first is fibrous layer and second is serous layer. Okay, the serous layer is again the double sac. Okay, the outer serous layer or the inner serous layer. The outer is called parietal pericardial pericardium, and the inner serous layer will called visceral pericardium. And between parietal and visceral pericardium, the space is left that is called pericardial space or pericardial cavity, which is filled by pericardial fluid, which is secretes by serous membrane. Membrane is serous membrane is made up of flattened epithelial cell, which secrete the pericardial fluid. Okay, now the fibrous pericardium or fibrous layer of the pericardium is made up of fibrous tissue. Okay, clear? Okay, now see this picture. This is the pericardium. Okay, so this is outer layer of pericardium, which is called fibrous pericardium. Okay,
and this is double layer of serous membrane. Okay, this is double layer of serous membrane. This one is called visceral pericardium and this one is called parietal pericardium. Okay, and in between visceral pericardium and parietal pericardium, this space is left which is called parietal cavity, which is filled by parietal pericardial space, which is filled by pericardial fluid. Okay, and this pericardial fluid secretes by this serous double sac of serous membrane which is made up of flattened epithelial cell. तो जो flattened epithelial cell होती है जो कि situated होती है सीरस मेम्ब्रेन में, वो ही क्या करती है, फ्लूइड को सीक्रेट करती है, उसको सर्कुलेट करती है. ओके, और जो ये पेरिकार्डियम लेयर जो होती है इंपॉर्टेंट होती है, क्या करती है, जो पेरिकार्डियल फ्लूइड्स होता है, जो पेरिकार्डियम जो लेयर होती है वो प्रिवेंट करती है, हार्ट को प्रोटेक्ट करती है और प्रिवेंट करती है. और जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो क्या करता है, स्मूथ मूवमेंट को अलाउ करता है, फ्रिक्शन अगर फ्रिक्शन होता है जब हार्ट मूव करता है तो ऑफकोर्स अंदर वो पम्प करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो क्या करता है, मूव करता है. और मूवमेंट जब मूवमेंट करता है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन हो सकता है. ओके, तो उस फ्रिक्शन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है. कोई शॉक होता है, कोई उसको क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है. और जो पेरिकार्डियम होती है वो प्रोटेक्शन देती है और क्या करती है, लुब्रिकेंट का काम करती है और हार्ट को प्रिवेंट करती है, और प्रोटेक्ट करती है. ओके, नाउ सेकेंड लेयर इज मायोकार्डियम. ओके, इट इज़ द मोस्ट थिकेस्ट लेयर. ये क्या होती है, मिडिल लेयर होती है हार्ट की और मोस्ट थिकेस्ट लेयर होती है विच इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, स्पेशलाइज कार्डियक मसल. और जो ये कार्डियक स्पेशलाइज मसल होते हैं, ये स्पेशलाइज कार्डियक मसल होते हैं, ये सिर्फ हमारी हार्ट में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है. ओके, इट इज स्टेटेड लाइक स्केलेटल मसल बट नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल. जो ये मायोकार्डियम जो मसल्स होती हैं ये करती है अंडर वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होती है, इनवॉलंटरी होती है. इनवॉलंटरी इन द सेंस कि मतलब ये अपनी मर्जी से नहीं, हम इनको अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. जैसे कि हमारी स्केलेटल मसल है, जैसे हमारी हाथ की मसल है, अगर हम चाहेंगे तो ही इसको फ्लेक्स करेंगे या स्ट्रेच करेंगे. लेकिन इनवॉलंटरी मसल्स ऐसी नहीं होती है. वो जो हैंड मसल है और जो स्केलेटल मसल है वो वॉलंटरी मसल है, हम उनको अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं. बट ये जो कार्डियक मसल होती है ये अपने आप ही होती है, इन पे हमारा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए करती है. इनवॉलंटरी होती है, अंडर वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होती है. और जो ईच मसल फाइबर होता है, ईच मसल फाइबर जॉइन टुगेदर एंड मेड intercalated disc. This arrangement give cardiac muscle and the appearance of being sheet of each cell doesn't need separate nerve supply when impulses initiated. तो एक जो कार्डियक मसल होती है वो एक साथ जॉइंट होती है, डिस्क बनाती है और क्या होता है, एक लंबी शीट बना देती है. वो छोटी छोटी मसल्स मिलकर एक लंबी शीट बना देती हैं, जिसकी वजह से जब इम्पल्सेस जनरेट होती है, पास होती है, तो एक कार्डियक मसल को क्या होती है, एक अलग नर्व सप्लाई की जरूरत नहीं होती है, एक ही सप्लाई से पूरे जो कार्डियक मसल होती है उन सब में इम्पल्स जनरेट हो जाती है और वो कॉन्ट्रैक्ट या जो भी उसका काम होता है वो करती है. ओके, नाउ मेन मतलब कार्डियक, ये जो मायोकार्डियम है ये हार्ट का मेन मतलब वो करती है, मेन काम करती है कॉन्ट्रैक्शन का, रिलैक्सेशन का. जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है. तो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम मेन क्या होता है, मेन वो काम कौन करता है, दिस मायोकार्डियम. ओके, तो ये हो गया हमारा मायोकार्डियम. एज यू कैन सी दिस पिक्चर, ये ओके, सो दिस इज़ द सिंगल कार्डियक मसल सेल एंड ये सब एक साथ जुड़ रही है और ये बना रही है इंटरकलेटेड डिस्क. ओके, और जब ये एक साथ सब जुड़ जाती हैं, ये पूरी एक शीट बना लेती हैं. और जब इम्पल्स जनरेट होती है, ट्रांसमिट होती है, तो वो एक उसमें होती है और पूरे में फैल जाती है. मतलब सबको सिंगल नर्व सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती है. ओके, नाउ अब आते हैं हम द एंडोकार्डियम मसल एंड द एंडोकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, लाइन्स इंटीरियर ऑफ द हार्ट वॉल्स एंड द चैम्बर. और जो एंडोथीलियल होती है वो क्या करती है, पूरा जो हार्ट के अंदर के हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंटीरियर होता है जो हार्ट का, उसको क्या करती है, उसको कवर करती है. ये क्या होती है, एक थिन स्मूथ मेम्ब्रेन होती है. वो क्या करती है, जो ब्लड हमारे हार्ट में जो ब्लड फ्लो होता है, जो पंप होता है, जो भी हार्ट में जो भी हमारी एक्टिविटी होती है उसको क्या करती है, स्मूथ करती है. और ये क्या करती है, ये किसकी बनी होती है, ये भी फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल से बनी होती है. ओके, नाउ द एंटीरियर ऑफ द हार्ट. सो the chamber, first we will study about chambers. There are 4 chambers in the heart, as you can see in the picture. This is the right atrium. Okay, this is the left atrium, this is the right ventricle and this is the left ventricle. Okay, as you can see. Now the both ventricle
एंड बोथ एट्रियम डिवाइड हो रहा है, तुम देख मतलब सब दिख रहा है सबको। सो ये जो डिवाइडेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टम बोलेंगे। ठीक है, ये रहा, इसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टम। जिसको हम एट्रियम वाले को बोलेंगे, जो एट्रियम वाले को बोलेंगे हम एट्रियम सेप्टम, वेंट्रिकल में वो हो जाएगा वेंट्रिकुलर सेप्टम, और पूरे को हम बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, और नाउ वॉल्स ऑफ द हार्ट, दे आर 4 वॉल्स ऑफ द हार्ट। 2 एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स होते हैं और 2 सेमिलुनार वॉल्स होते हैं, वो हम इसी पिक्चर में देखेंगे। ओके, दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड दिस इज द बाइकस्पिड वॉल्व, ऑल्सो कॉल्ड मिट्रल वॉल्व। इनको एवी नोड्स भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, एट्रियम को और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करते हैं, इसलिए इनको एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं, कहते हैं। ओके, ट्राइकस्पिड, जो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है ये 3 कप से मिलकर बना हुआ होता है, और जो ये बाइकस्पिड वॉल्व होता है ये 2 कप से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए इसको बाइकस्पिड भी बोलते हैं और मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ओके, और इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। इसके अलावा 2 और वॉल्व्स होते हैं जो कि होते हैं दिस वन पल्मोनिक वॉल्व और दिस वन आयोटिक वॉल्व। ओके, जो पल्मोनिक वॉल्व होता है ये कहाँ जाता है, पल्मोनरी वेन्स में, जो कि ओपन्स होती हैं लंग्स में। ओके, जो कि ओपन्स होती हैं, ये पल्मोनिक वॉल्व जाएगा पल्मोनरी वेन में, जो कि लंग्स में ओपन होती है। ठीक है, वहाँ लेके जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से, और जो आयोटिक वॉल्व होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है हमारी बॉडी में। ओके, बॉडी में सप्लाई करता है। तो ये भी होगा हमारे 2 वॉल्व। और जो ये आयोटिक वॉल्व और जो पल्मोनिक वॉल्व होते हैं उसको हम सेमिलुनार वॉल्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़े लूज होते हैं, ये प्रॉपरली टाइट नहीं होते हैं, ये थोड़े लूज होते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड pulmonic valve, aortic valve, which is called semilunar valve. Now go forward. एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व, अपर एट्रियम मैंने आपको बताया जैसे कि ये दोनों एक सेपरेट करते हैं एट्रियम को वेंट्रिकल, इसलिए इनको एवी वॉल्व बोलते हैं। ये क्या होता है, किससे बने होते हैं, डबल फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम से और थोड़े से फाइब्रस टिश्यू से बने होते हैं। कौन से, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व, ये दोनों। ओके, ना तो आयोटिक वॉल्व मैंने बताया ये किस में होता है, आर्टरीज में जाता है, आयोटा में जाता है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक लेके जाता है। पल्मोनरी वॉल्व ओपन होता है पल्मोनरी वेन में, जो कि करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाता है। हम इसका सर्कुलेशन और इसकी फिजियोलॉजी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। बोथ आयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व ऑल्सो कॉल्ड सेमिलुनर वॉल्व। सेमिलुनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़े लूज होते हैं, प्रॉपर टाइट नहीं होते, क्योंकि जब ये हार्ट को मतलब लंग्स को, जब ये पल्मोनरी वॉल्व लंग्स को पंप करता है और जो आयोटिक वॉल्व बॉडी को पंप करता है, तो ये पूरा ब्लड एकदम से नहीं करता है, थोड़ा सा लूज वॉल्व का रहना जरूरी होता है। ओके, तो इसलिए इनको सेमिलुनर वॉल्व बोलते हैं। इसके अलावा अदर स्ट्रक्चर जो हार्ट के हैं वो भी देख लेते हैं अपन। एक होता है एसे नोड, जिसको हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। इसको साइनो एट्रियल नोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ सिचुएटेड होता है, अपर ये राइट एट्रियम पे और सुपीरियर वेना कावा के नीचे, इसलिए इसको हम साइनो एट्रियल बोलते हैं। ठीक है, इसको हार्ट का पेस मेकर बोला जाता है। इसके लिए फर्दर इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ओके, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये क्या करता है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है पूरे हार्ट में। सेकंड होता है एवी नोड। एवी नोड क्या होता है, ये रहा हमारा एवी नोड, इसको सेकंड पेस मेकर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जो एसो नोड से इम्पल्सेस आती है, जब एसो नोड इम्पल्सेस ट्रांसमिट करता है तभी जो हमारा एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वो क्या करता है, सिग्नल्स देता है एवी नोड को। जब एवी नोड क्या बोलते, एवी नोड जो इम्पल्सिस होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होता है वो किसको पास करती है, बंडल ऑफ हिज को। दिस इज द बंडल ऑफ हिज। ओके, बंडल ऑफ ब्रांच और बंडल ऑफ हिज। नाउ दिस बंडल ऑफ ब्रांच और जब इम्पल्सिस पास होती है तो हमारे पूरे जो वेंट्रिकल होता है वो पूरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब ये इम्पल्सिस पास होती हैं बंडल ऑफ हिज को, और ये क्या करती है, पास करती हैं परकिंजी फाइबर्स को। ये हमारे होते हैं परकिंजी फाइबर। तो ये क्या करते हैं, सब मिलकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे हार्ट की एक्टिविटी पर। ठीक है, तो ये अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिटेल में, हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे हम हार्ट कैसे वर्क करता है, इसकी फिजियोलॉजी। ओके, सो ये रिमेंबर करना, ऐसे नोड होता है,
ओके, दिस इज द एस ए नोड, दिस इज द ए वी नोड, दिस इज द बंडल ऑफ ब्रांच और बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं इसको, और ये होते हैं परकिंजी फाइबर्स. सो दिस इज द हार्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट हार्ट टुडे. हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हार्ट की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और खूब और भी टॉपिक हम हार्ट के लिए डिस्कस करेंगे. सो इसके लिए आगे के पार्ट के लिए प्लीज़ कंटिन्यू रहें हमारे साथ, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. थैंक यू.